So good morning dear all. Today we are going to learn new chapter, that is fifth chapter, In Search of Peace, that is Buddha and Mahavir. Okay, very interesting chapter. Here we are going to learn about Gautam Buddha, who followed Buddhism, clear, and Mahavir Swami, who followed the Jain religious. Jain religious को उन्होंने start किया, clear, in search of peace. So they just find out that peace, what is the peace? कैसे हम शांति से रह सकते हैं? What is actually the life? So these two, we are going to learn about these two, Buddha and Mahavir. Let's start. In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sectors in India. So if you talk about 6th century BC, it's very important reforms. Important reforms means changes. Various changes occurred in the 6th century. हम बात करेंगे महाजनपदा के टाइम की. क्लियर? उस समय सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होने लगे, बहुत सारे रिफॉर्म्स होने लगे. In 6th century, some of the reformers worked against social evils. Social evils मतलब which is not good. Okay, which was not good practice for the people. Okay. People were superstitious थे, लोग क्या बोलते हैं, गलत प्रथा को मान रहे थे. तो ये सब जो बैड इविल्स थे ना, जो बैड थिंग्स हो रहे थे ना, उसको सब रिमूव करने का काम किया. That had entered social and religious areas. Okay, जो हमारे सोशल और रिलीजियस एरिया में ज्यादा इविल्स और बैड जो प्रथा बोलते हैं, कस्टम्स, that all spread in our social and religious areas. Along with it, they also worked for removal of social inequality and immoralities, which is not good thing. Immoralities means which is not actually what to say, otherwise wrong behavior. You can write immoralities means wrong behavior. तो ये सब जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स के along with it, they also worked for removal of social inequality. जो हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी. ओके, क्योंकि सब लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं करते थे उस समय. व्हाट इट? तो ये सब रिमूव करने में बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने सोसाइटी को चेंज किया. इमोरालिटीज को भी चेंज किया. रॉन्ग बिहेवियर जो थे हमारे पीपल्स जो कर रहे थे रॉन्ग डिड्स, उसको रिमूव करने का काम किया. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. Among all the reformers, today we are going to learn about the Gautam Buddha and Mahavir. उनमें से हम दो का आज पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कैसे सोसाइटी में चेंजेस लाया. Yes, how they changed society, how they just avoid all this inequality and immoralities which were there in our society. We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them. Pursuit means their efforts. They put their efforts to change the society. Got it? और एक ह्यूमैनिज्म, एक ह्यूमन नेचर को न्यू लाइफ दिया उन्होंने. किसने? गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी ने एक न्यू चेंजेस लाया सोसाइटी में. Now let's understand about the first reformer, गौतम बुद्धा. ओके, तो हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि who was गौतम बुद्धा, where he was born. We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from Jatak Katha. Jatak Katha is just related the story of Buddha. Okay, and Buddhist text Tripitaka. Tripitaka means 3 baskets, 3 parts. तो यहाँ पर इस बुक से हमें नॉलेज मिलेगा. ये गौतम बुद्धा की स्टोरीज हमें यहाँ पर इसमें हमें मिलेगा. क्लियर? वेयर इन त्रिपिटिका. 3 बोलो सभी. 3 Tripitaka मीन्स 3 पार्ट्स. इनकी स्टोरी के, इनके लाइफ के 3 पार्ट्स है. ओके, दैट इज सुक्ता पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक. यू कैन अंडरलाइन. एग्जाम पूछेंगे व्हाट आर द 3 पिटका, तो यू कैन राइट दीज 3 नेम्स. ओके, about 550 Jatak stories are associated with the pre-birth of Buddha. तो ये सब रिलेटेड टू प्री बर्थ का जो बुद्धा का जो स्टोरीज है, इट्स ऑल गिवन इन दिस बुक. ओके, इन दिस टेक्स्ट.
There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of the Himalayas while going towards Nepal. So one place is there, Kapilvastu. कहाँ पर आया? नेपाल में, नेपाल के जहाँ हम foothills में हम चढ़ते हैं तो वहां पर आया. The Kshatriyas of Kapilvastu were called Shakyas. जो कपिलवस्तु, जो क्षत्रियास है वहां के कपिलवस्तु में जो भी क्षत्रियास क्लेन के ग्रुप के जो लोग रहते हैं, ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शक्यास. A group of people, as we have learned in 16 Mahajanapadas. क्लियर कि कैसे स्मॉल और बिग ग्रुप में लोग रहते थे. It was a republic state. ओके, तो कौन सा रिपब्लिक स्टेट्स है? This Kapilvastu. It was a republic. Shuddhodhana, what is the spelling? Shuddhodhana was the head of this republic. मतलब इस रिपब्लिक स्टेट के हेड कौन थे? शुद्धोधना. माया देवी वॉज वाइफ ऑफ शुद्धोधना. ये सब अंडरलाइन करो कि कौन वाइफ थी शुद्धोधना की, तो माया देवी. गौतम बुद्धा वॉज born in house of Suddhodana and Maya Devi in the year 566 BC. एग्जाम पूछेंगे when he was born, तो 566 BC. ओके, तो ये एक राजा के बेटे थे. कौन? राजा के बेटे. दिस बुद्धा, गौतम, उनका चाइल्डहुड का नाम गौतम था. हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ. सॉरी, नॉट गौतम बुद्धा. उनकी चाइल्डहुड का नाम किसका? बुद्धा की बात कर रहे हैं. तो उनका जन्म का नाम क्या था? सिद्धार्थ था. आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड. उनकी मदर मर गई. किनकी? सिद्धार्थ की, माया देवी. ओके, जन्म देते थोड़े साल बाद वो मर गए. Therefore he was nurtured by, nurtured मतलब उनका जो कौन है, जो बचपन का जो उनको बड़ा करना, ग्रो करने का. माँ तो मर गई, अभी कोई दूसरा उसको केयर करेगा ना, ब्रॉटअप करेगा. Nurtured by गौतमी महाप्रजापति. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन. तो उनको कितना, किसने ग्रो किया, उनको किसने क्या बोलते, पाला पोसा? गौतमी महाप्रजापति. Who was his foster mother? Not real mother, but caring mother, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया. Yes. From young age, Siddharth was associated with education and knowledge. Next to Kapilvastu, there was a monastery. Monastery जहाँ पर monks का रहने का जगह, एक बिल्डिंग होती है जो राजमहल या बड़े बड़े बिल्डिंग की तरह नहीं होती है. सिंपल बिल्डिंग where very all saints used to live. तो वो था एक नेक्स्ट टू कपिलवस्तु जहाँ पर ये सिद्धार्थ रहते थे. ऑफ अ सेंट नेम अलारा कलम. अलारा, तो वहां पर एक सेंट रहते थे, उनका नाम क्या था? अलारा कलम. अलारा कलम वॉज हिज गुरु. हुज गुरु? सिद्धार्थ गुरु. सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम. क्योंकि बचपन से उनको ये जो साधु संत के साथ रहने का अच्छा लगता था सिद्धार्थ को, तो वो क्या किए, उनके आश्रम में गए. हियर ही डिड मेडिटेशन. तो उन्होंने वहां पर मेडिटेशन किया, क्योंकि आश्रम में आपको पता है साधु संत लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मेडिटेशन में भगवान का ध्यान करते हैं और सब तपस्या करते हैं वो लोग. यस, तो सिद्धार्थ ने भी किया. सिद्धार्थ फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यू टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि. तो उनके फादर को शौक हो गया कि भाई ये राजमहल छोड़कर कहीं संन्यास तो नहीं लेगा. तो इस फादर वॉज वरीड बिकॉज वो कभी भी समाधि है, तपस्या है, वैसी बात करता था घर पर आकर. तो उसके फादर को डर लगने लगा कि क्या भाई मेरा बेटा कहीं घर छोड़ के तो नहीं जाएगा. He was worried if Siddharth would become a monk. क्योंकि इतना बड़ा राजमहल है तो उसको संभालेगा कौन मेरे मरने के बाद. So he was worried कि कहीं भाई साधु तो नहीं बन जाएगा मेरा बेटा. Siddharth was married at a young age. His wife's name was Yasodhara. फिर शादी भी कर दी उनकी, और उनके वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा. He also had a son named Rahul. और उनका एक सन भी था. किसको? सिद्धार्थ का एक सन था जिसका नाम था राहुल. Got it? Next, home sacrifice and साधना. साधना मतलब पूरे मेडिटेशन अपने लीन में भगवान के ध्यान में. Now let's understand how सिद्धार्थ ने किया होम सैक्रिफाइस, घर को सैक्रिफाइस किया. At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state and
बिकम अ सेंट हर्मिट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो एट द एज ऑफ 30 उन्होंने सोचा कि अब मैं घर को छोड़कर बाहर एक ट्रूथ, सच को मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा। यस, एट व्हाट एज? 38। रिनाउंस मतलब रिजेक्टेड। उन्होंने सब जो लग्जरी लाइफ में जो जी रहे थे, राजा कैसे रहते हैं आपको पता ही है, उन्होंने सब छोड़ के सोचा कि अब मैं सबको त्याग करके अब मैं लाइफ को सर्च करने जाऊंगा। व्हाट इज एक्चुअली ट्रूथ, व्हाट इज एग्जैक्टली लाइफ। वन नाइट ही टुक हिज चैरियटर चना, चैरियटर चना नाम है, चैरियटर मतलब पता है ना आपको, घोड़ा सवारी करने का आदमी, जो भी घोड़ा को सवारी करता है, एंड हॉर्स कांथर। तो वो क्या हो गया, एक रात को लेकर चला गया, चना को भी लेकर गया और अपना जो हॉर्स नाम है कंथक, उनके साथ बैठकर वो चला गया। एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट। फिर कहाँ उतर गया वो, आउटसाइड जो उनके बैंक का रिवर था ना, वहां उतर गए। लिविंग इज रॉयल अटायर, रॉयल अटायर मतलब जो आपको पता है राजा का कपड़ा पहनावा कैसा होता है, पूरा सोना दागीना हैवी क्लोथ्स होते हैं, सब निकाल कर अटायर्स को, रॉयल अटायर्स को छोड़कर ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू चना, जो उनके साथ था, चना करके जो आदमी जो चैरियटर्स था उसको सब देकर, एंड ऑर्डर्ड हिम टू टेक कंथक अलोंग विथ हिम एंड रिटर्न टू द पैलेस। और बोला, ऑर्डर दिया, अब तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए, नाउ यू टेक ऑल दिस ज्वेलरी व्हाट आई एम वेयरिंग, और अपने पैलेस में, आप मेरे पैलेस में अभी चले जाओ, मैं नहीं आने वाला। पूरा जो अपना लग्जरी, पूरा कुछ नहीं पहना, सिंपल क्लोथ पहनकर वो वहां पर चना और उनके हॉर्स को भेज दिया वापस। He himself bought the ascetic cloth. Ascetic clothes मतलब ascetic cloth means a simple cloth. ओके, जैसा आपको पता है ना साधु संत लोग कैसे पहनते हैं, सिंपल कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़ा पहनकर वो वहां से चले गए। ऑफ द हर्मिट एंड वॉक टूवर्ड्स द जंगल। और कहाँ जाने लगे वो, जंगल की तरह जाने लगे। ओके, सब अपना लग्जरी ज्वेलरी सबको उनके क्या बोलते चना को देकर सिंपल क्लोथ में जंगल की राह में चले गए। After leaving his home, he went to Rajgriha and then to Puruvela. Rajgriha is a place where it is in क्या बोलते हैं, ये राजगृह एक जगह है स्टूडेंट्स जो या बंगाल में बिहार की साइड में आया हुआ है। ओके, सो ही वेंट ओवर देयर। Here he started penance. Penance मतलब घोर तपस्या करना। Penance means पूरा अपने शरीर को सब त्याग देकर, सैक्रिफाइस कर घोर तपस्या करने लगे। With 5 ब्राह्मण्स, 5 ब्राह्मण्स के साथ मिलकर उन्होंने पेनेंस किया। ओके, एक पैर में खड़े नहीं रहते, ऐसे तपस्या करते हैं। बॉडी को उस समय पेन भी होता है स्टूडेंट्स, ऐसी तपस्या नहीं होती है। He felt that giving food and water and tormenting the body. Tormenting मतलब you can write the meaning is great mental suffering. Great mental suffering. जब तक आप क्या शरीर को सफर नहीं करोगे। ओके, he felt that giving food and water and tormenting the body would not yield knowledge. फिर उनको लगा कि भाई इस पूरे शरीर को जो टॉर्मेंटिंग करना, गिव अनप्लेजर। ओके, तो आपने लिखा टॉर्मेंटिंग एंड अनहैप्पीनेस टू द बॉडी वुड नॉट यील्ड नॉलेज। आपको ऐसे नॉलेज नहीं मिलेगा। ही थॉट अगेन, फिर उनको पता चला घोर तपस्या करने के बाद भी कि भाई फूड को त्याग करना, उन्होंने सबको त्याग कर दिया था, बॉडी को भी बहुत हार्म पहुंच रहा था। आप ही सोचिए, इतने दिन खाना नहीं खाएंगे, तपस्या करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी टॉर्मेंटेड टू द बॉडी। Conquering the path of self-consciousness and the desire is the major duty of human beings. Then he thought self-consciousness मतलब खुद का self-consciousness होना चाहिए, खुद alert होना चाहिए, and the desire, खुद की इच्छा is the major duty of human beings. Leaving 5 Brahmins, he decided to do penance alone. फिर उन्होंने क्या किया, 5 Brahmins के साथ जो तपस्या कर रहे थे ना, उनको भी छोड़कर अकेले तपस्या करने गए। Sitting under the people tree at Bodhi Gaya, he started sadhana for truth and enlightenment. फिर उन्होंने क्या किया, बोधि गया इस विलेज इन बिहार, आप लिख सकते हो विलेज इन बिहार। तो वहां पर अकेले तपस्या करने लगे। कहां पर, पीपल ट्री
अंडर, साधना करने लगे ट्रूथ की, क्योंकि आप कभी भी अगर घोर तपस्या करोगे तो आपको मोक्ष मिलता, बोलते हैं ना, आपको भगवान दिखाई देते हैं। एनलाइटमेंट मतलब नॉलेज, द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमती, एनलाइटमेंट यू कैन राइट नॉलेज, तो नॉलेज के ज्ञान में वो तपस्या करने लगे। आफ्टर मेनी डेज ऑफ साधना ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैसाखी पूनम, आफ्टर सम डेज घोर तपस्या करने के बाद उनको साधना, ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ व्हेन ही गॉट नॉलेज, वैसाखी पूनम, एकम 20-30 सब आता ना तिथि, तो वैसाखी पूर्णिमा के दिन उनको नॉलेज अटेन हुआ। ऑन एक्वायरिंग नॉलेज, आफ्टर गेटिंग, ऑन एक्वायरिंग मीन्स टू गेटिंग, आफ्टर गॉट नॉलेज ही बिकेम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ, उसके बाद उनका नाम सिद्धार्थ से क्या गिरा, बुद्धा। आफ्टर गेटिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज, he got the name Buddha from Siddhartha. Buddha means conscious or wise. Wise मतलब clever. Okay, तो wise you can write a clever, having knowledge, good judgment. तो अब यहाँ पर इन लोग इनको फॉलो करने लगे क्योंकि he itself got a good knowledge. Later on he was called Gautam